صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین نے آزاد کشمیر کی کشیدہ صورتحال پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ طاقت کے استعمال کا راستہ اختیار کر کے پرامن ماحول کو خراب کیا گیا۔ وہ تشدد واقعات پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پہلے ہی حکومت کے رویے پر تحفظات کا اظہار کر دیا تھا کہ جائز مطالبات منظور کیے جائیں۔ گلگت بلتستان میں اگر بجلی اور آٹا سستا ہے تو آزاد کشمیر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن المیہ یہ ہے کہ وزیر اعظم اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں بلکہ عقل کل بنے بیٹھے ہیں۔ سب انسپیکٹر عدنان قریشی کی شہادت بھی ایک قومی نقصان ہے، اور مظاہرین میں سے بھی جو نقصان ہو رہا ہے جو مزید ہوگا وہ بھی ریاست کو ہی نقصان پہنچے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی عوام پر طاقت کے استعمال اور گرفتاریوں اور تشدد کی شدید مذمت کرتی ہے اور حکومت کی ایسی تمام پالیسیوں کو یکسر مسترد کرتی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے دو بڑوں کے درمیان لفظی جنگ ختم نہ ہوئی۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر گورنر فیصل کریم کنڈی کو دھمکی دے دی ہے۔ بولے کہ گورنر خیبر پختونخوا سیاسی گفتگو سے اجتناب کرنے ورنہ گرانٹ اور ان کی گاڑی کا داخلہ بند کر دیں گے۔ میں ان کو وارننگ دے رہا ہوں اب کہ آپ گورنر ہیں، آپ کا ایک آئینی عہدہ ہے۔ آپ یہ پولیٹیکل باتوں سے، پولیٹیکل سٹیٹمنٹ سے اور کنفرنٹیشن سے گریز کریں۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ پرہیز کریں۔ آپ کی گاڑی کا تو تیل بھی میرے بجٹ سے جاتا ہے، آپ کی گاڑی کا تیل تک نہیں ہوگا پھر، اور یہ گورنر ہاؤس بھی جو ہے نا آپ کی ملکیت نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر میں اس کو ڈکلیئر کر دوں عوام کے لیے کھول کر کہ یہ جو ہے پراپرٹی ہے ہماری، اور یہاں عوام کے لیے کھول کے میں اس کو ہیریٹیج کر کے پرانی بلڈنگ ہے جب گھر بنا کے آپ کو 2 کمروں کی انیکسی پڑی ہے نا نیچے، اس میں شفٹ کر دوں گا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے علی امین گنڈاپور کو گورنر ہاؤس کو ذہن سے نکالنے کا مشورہ دے دیا ہے۔ رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں گورنر ہاؤس کا تحفظ کرنا آتا ہے۔ خیبر پختونخوا میں علی امین گنڈاپور کو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ گورنر ہاؤس کوئی سازش کا گڑھ بنے یا خیبر پختونخوا کی ترقی میں رکاوٹ بنے۔ میں اس میں نہیں پہنچنا چاہتا کہ جی میری ملاقات ہوئی ہے، نہیں ملاقات ہوئی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ میں کہوں کہ اب سی ایم اور گورنر لڑیں کہ لوڈ شیڈنگ کیسی ہوئی کیسے نہیں۔ وہ تو ان کو نظر آ گیا کہ انہوں نے 2 مہینے میں جو یا جتنے سے جب سے سی ایم بنے تو ان کے جو ہے کیا چیز ہے، لیکن میں اس لڑائی میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے۔ ناچنے والے گھوڑے جو ہے نا وہ ریس نہیں دوڑتے، وہ صرف ناچتے رہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے پہل حکومت کو کرنا پڑے گی، یہ کہنا رہنما ہے پی ٹی آئی علی محمد خان کا۔ پروگرام ایک پیٹ میں گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی مذاکرات کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ ہم ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ مجھے آپ نے رگڑا دیا رکھا، شاہ صاحب کو رگڑا دیا ہے آپ نے، پرویز الہی صاحب جو سینئر آدمی، اس لیے اب بیٹھ کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو مذاکرات کرنے پڑیں گے۔ میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، لیکن اس میں پہل حکومت نے کرنی۔ وی آر اویلیبل، لیکن ہم مذاکرات کی بھیک نہیں مانگیں گے۔ آپ نے علی امین گنڈاپور کا جو ہے ناطقہ بند کر رکھا ہے، اس کے لیڈر کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ علی امین گنڈاپور کے ذمہ آپ نے ایک ایسا صوبہ حوالے کیا جس کو تباہ و برباد کے آپ کے رکھ دیا ہے 2 سال مس گورننس کر کے۔ ہمارے دور میں تو کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نہیں تھا۔ گورنر صاحب نے کون سے پول جھڑے ہیں؟ گورنر صاحب نے کون سا جو ہے تو بلاول ہاؤس سے کوئی انہوں نے اجرک کے تحفے بھیجے ہیں سی ایم ہاؤس، تو جیسی بات ہوتی ہے تو اسی طرح کا جواب آتا ہے۔ غیر ذمہ دارانہ بیان پر تحریک انصاف نے پارٹی کے ناراض رہنما شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا ہے۔ 3 روز میں وضاحت دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شیر افضل مروت نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر پریس کانفرنس کرنے کا ٹویٹ کیا، پھر کچھ دیر بعد اسے ڈیلیٹ کر دیا۔ پی ٹی آئی کی صفوں میں اختلافات شدت اختیار کرنے لگے۔ سیکرٹری جنرل عمر ایوب کی طرف سے شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا۔ شیر افضل مروت کو شو کاز نوٹس غیر ذمہ دارانہ بیانات دینے پر جاری کیا گیا۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ایسے بیانات سے پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچا۔ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی واضح احکامات ہیں کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دیے جائیں۔ 3 روز میں وضاحت دیں، کیوں نہ آپ کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے۔
दूसरी तरफ खुद शेर अफजल मरवत भी पार्टी क़यादत का कच्चा चट्टा खोलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने एक्स पर अपने ट्वीट में कहा कि वो अपने साथ होने वाली ज्यादतियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उन्होंने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उमर अयूब आए रोज उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। जब आप फैसला कर चुके हैं तो मुझे भी बात करने दें। ताहम कुछ देर बाद नाराज रहनुमा ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। पीटीआई ज़राए के मुताबिक शेर अफजल मरवत अगर क़यादत को मुतमईन न कर सके तो पार्टी डिसिप्लिन के तहत उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान फाइनल तो ना जीत सका लेकिन शायकीन के दिल जीत लिए। शहरियों ने 13 साल बाद पाकिस्तान हॉकी टीम के अदलान शाह कप के फाइनल खेलने पर दाद दी है। कहते हैं कि महदूद वसाइल के बावजूद कौमी टीम ने जान लगाकर फाइनल मैच खेला। ये तो लक की बात होती है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था इस बार और वो फाइनल तक रीच कर पाई इतने अरसे बाद, तो दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। बहुत अच्छा खेला, यही बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आप देख रहे हैं इससे पहले पाकिस्तान में हॉकी का जवाल इस तरह स्टार्ट हो गया था कि हम अजलान शाह के फाइनल तक भी नहीं पहुंच सकते थे। इस दफ़ा हम फाइनल तक पहुंचे, हार्ड लक थी, हार गए, नो इशू। बहुत खुशी हुई है कि आफ्टर 13 इयर्स हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो मेरी दुआ है कि इस दफ़ा पहुंचे हैं और अगली दफ़ा इंशाल्लाह हम विन करें। आई बिलीव इट इज़ अ हार्ड लक कि पाकिस्तान मैच हारा है, लेकिन हमने देखा कि हॉकी का रिवाइवल है। एक टाइम था जब हॉकी का बूम था बहुत और पीक पे था हॉकी, और अब हमने देखा कि इंडिविजुअली जो प्लेयर्स हैं उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, और बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा कौमी खेल है हॉकी, और अगर हम फाइनल में पहुँच गए तो आई बिलीव कि यही बहुत बड़ी बात है। मैं सबसे पहले टीम को अप्रिशिएट करूँगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा खेला और फाइनल तक गए, अपने आप को उन्होंने मतलब प्राउड किया, मतलब काफ़ी इसके बाद उन्होंने अपने आप को जो है ना इस काबिल किया कि वो फाइनल जीत हार तो ये मुकद्दर का खेल होता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी टीम को हौसला अफजाई करता हूँ और उनको जो है ना अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा खेला। और हार गई है, खेल के हारी कोई मसला नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आगे अच्छा करेंगे, हार जीत तो होती रहती है। बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत अच्छा खेले हैं। हॉकी जो टीम है बहुत अच्छी टीम है। माओ की अजमत को सलाम पेश करने का दिन पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मदर डे मनाया जा रहा है। बच्चे मोहब्बत का इजहार करने के लिए अपनी माओ को मुख्तलिफ तोहफ़े और कार्ड्स पेश कर रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मदर्स डे यानी माओ का आलमी दिन दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में हर बरस मई के दूसरे एतवार को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया की तमाम माओ के लिए वक्फ किया गया है। वैसे तो माओ की कुर्बानियों को जितना सराहा जाए उतना कम है। माएं अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होती हैं। वो अपने बच्चों की देखभाल दिलो जान से करती हैं। माओ का अपने बच्चों से प्यार लाजवाल होता है। इस दिन को मनाने का मकसद माँ के मुकद्दस रिश्ते की अजमत और अहमियत को उजागर करना और माँ के लिए अकीदत, शुक्रगुजारी और मोहब्बत के जज्बात को फरोग देना है। इस दिन बच्चे अपनी माँ को खुश करने के लिए खास एहतमाम भी करते हैं। वो अपनी माँ को तोहफ़े भी पेश करते हैं जो रिवायती फूलों से लेकर तहनीती कार्ड्स और कीमती चीजों तक मुहित होते हैं। सोशल मीडिया पर माँ तुझे सलाम, मदर्स डे स्पेशल हैशटैग्स भी टॉप ट्रेंड्स हैं। बात करते हैं फैजाबाद धरना नजरसानी केस की, जिसमें गुज़श्ता समात का तहरीर हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन की रिपोर्ट TOR के बरखिलाफ करार दे दी है। हुक्मनामे में कहा गया कि कमीशन ने इसरार किया कि एक मखसूस शख्स ने कुछ गलत नहीं किया। कमीशन ने महज उस शख्स की कागज़ पर लिखी तरदीद पर इन्हिसार किया। कमीशन ने एक फरीक से बयान हल्फी लिया और दूसरे से सादा बयान लिया। कमीशन ने दोनों फरीकैन को एक दूसरे पर जरा का मौका नहीं दिया। रिपोर्ट में ठोस मवाद के बजाय महज जुमलाबाजी और इस्लाहात हैं। तहरीक लब्बैक के किसी फरीक का बयान ही नहीं लिया गया। रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या नहीं, अटॉर्नी जनरल 2 हफ्ते में जवाब जमा कराएंगे। पार्क लेन और तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी है।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की नैब केसेस में सदारती इस्तिस्ना की दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हैं, इनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ अली जरदारी की जानिब से आइन के आर्टिकल 248(2) के तहत दरख्वास्त दायर की गई। तहरीरी फैसले के मुताबिक प्रोसिक्यूशन की जानिब से इन दरखास्तों पर कोई भी एतराज नहीं किया गया और न ही मुखालफत की गई। आइन के आर्टिकल 248(2) के तहत सदर मुमलिकत के खिलाफ कोई केस हो सकता है और न ही कोई कार्रवाई जारी रह सकती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की केसेस से सदारती इस्तिस्ना हासिल करने की दरखास्तें मंजूर की जाती हैं। आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें कि साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं, शहबाज शरीफ के पास कुछ भी मौजूद नहीं है। सूरत हाल में अगर कोई सियासत में बेहतर किरदार अदा कर सकता है तो वो नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ के अंदर जो है डेफिनेटली मुज़ाकरात बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि असल जो सियासत है नून लीग की वो तो नवाज शरीफ के पास है। शहबाज शरीफ के पास तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जो भी है नवाज शरीफ मेरे ख्याल में और नवाज शरीफ को करनी चाहिए। नवाज शरीफ पाकिस्तान में 1985 से सियासत में है और वही अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए अगर किरदार अदा कर सकते हैं तो वो नवाज शरीफ कर सकते हैं, शहबाज शरीफ नहीं। इस वक्त इदारों को जोड़ने और नौजवानों को आगे लाने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की भी यही सोच है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मौलाना फजल रहमान सीनियर सियासतदान हैं, मुल्क की सियासत में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इदारों को आपस में जोड़ने की सियासत करने की ज़रूरत है और उसके लिए मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई और प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। ख़ास तौर पर मेरी ये ख्वाहिश होगी कि नौजवान आ गए, नौजवान की आदत जो है हम हर सतह पर लाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब एक बड़े तजर्बाकार सियासी रहनुमा हैं इस मुल्क के और उन्होंने उनकी सियासत जो है उसमें बड़ी खूबियाँ हैं। पॉलिटिक्स इज़ ए डे टू डे अफेयर, इसमें तब्दीलियाँ आती रहती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान ने पंजाब और बलूचिस्तान हुकूमत को जाली करार दे दिया। कोयटा में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दोनों सूबाई हुकूमतें फार्म 47 की पैदावार हैं। सिंध में पीपल्स पार्टी और MKM को मुसल्लत किया गया। अदल इंसाफ न होने की वजह से पाकिस्तान मुश्किलात से दो चार है। 76 साल से अवाम अपने हुकूक से महरूम है। सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म पर इलेक्शन कमीशन के कानूनी विंग ने अपनी राय दे दी है। ज़रा इलेक्शन कमीशन का कहना है कि लॉ विंग के राय के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से अरकान को डी नोटिफाई नहीं किया जा सकता। अदालती हुक्म की रोशनी में सिर्फ अरकान को मुअत्तल किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार नहीं दिया। अदालत ने सिर्फ हाई कोर्ट और ECP का फैसला मुअत्तल किया है। इस मामले पर वजारत कानून से भी राय लेने का इम्कान है।